Hello everyone, welcome to SNET Pathshala. Today we are going to study about ethical or philosophical school of jurisprudence. So the legal theory or the legal philosophy of this school of jurisprudence is based on ethical values. Now what are ethical values? Ethical values basically is a motivation of people to have an upright living. An upright living means to do what is right. And the science of ethics also includes morality. Morality means what a person should do and what a person should not do. Now, this school of jurisprudence also introduces the concept of justice. Now, concept of justice जो है वो इमैनुअल कांत के हिसाब से एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि ये जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है वो कैसे अटेन हो रहा है थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ. सो लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ social justice. Now the jurists of ethical school of jurisprudence are Kant, Grotius, Hegel and Fichte. Now let's study Immanuel Kant. Immanuel Kant जी ने बोला है कि जो एथिक्स और लॉ हैं वो वन एंड द सेम थिंग नहीं है. ठीक है, तो क्या है, what is the distinguishing point in ethics and law? So in ethics, basically ethics is ethics are spontaneous acts. It is the inner life of an individual and it includes morality, whereas law is all acts which can be compelled is a law. Law is the external conduct. Law basically regulates external conduct, whereas ethics regulate the inner life of an individual. Law is a legal provision, we all know. So basically theory of categorical imperative जो मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ाया है वही है theory of categorical imperative. Theory of categorical imperative में ये बताया गया है कि जो morality और law है वो अलग अलग चीज हैं. Morality क्या है? Morality internal motives हैं individual के, whereas legality, law is a matter of action in conformity with an external standard set by law. Law law एक ऐसा conduct है, ऐसा matter of action है जो कि एक external standard है. अब external standard क्या है? जो कि law ने set किया हुआ है. तो law is an external standard set by law. Legality is a matter of action. Matter of action is an external standard set by law. ठीक है, तो this is the difference. Ethics, law. Ethics is the inner morality, inner life of an individual, and law is the external conduct set by law. मतलब law is the matter of action और मैटर ऑफ एक्शन क्या है? एक्सटर्नल स्टैंडर्ड है, और एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या है? जो कि लॉ ने सेट किया है. अब इमैनुअल कांट जी बोलते हैं कि लेजिस्लेशन कुड ओनली बी इफेक्टिव व्हेन इट इज द यूनाइटेड विल ऑफ द पीपल. भाई लेजिस्लेशन अगर एमपीज एमएलएज अपने तरीके से बर्बरता दिखाएंगे, अपने इंटरेस्ट के लिए लॉज बनाएंगे, तो वो क्या होगा? वो लोग नहीं मानेंगे, दंगे हो जाएंगे, इनस्टेबिलिटी आ जाएगी कंट्री में, बहुत सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे ही होंगी लेकिन होंगी. बट अगर लेजिस्लेशन को इफेक्टिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मेक अ लेजिस्लेशन इन कंफॉर्मिटी विद द यूनाइटेड विल ऑफ द पीपल. एज पर हिम जस्टिस इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. अब जस्टिस क्या है? एक रिलेटिव कंसेप्ट है. जस्टिस क्या है? एक रिलेटिव कंसेप्ट है. अब जस्टिस एक रिलेटिव कंसेप्ट कैसे है? जस्टिस एक रिलेटिव कंसेप्ट ऐसे है कि आपका मान लो कि जो लॉ है, लॉ सर्कमस्टांसेस पे लगता है,
इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो लॉ है, लॉ यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, इट इज टू बी कंडीशनड टू द सर्कमस्टांसेस इन विच लॉ अप्लाइज। जो जस्टिस कैसे मिलेगा, जस्टिस ऐसे मिलेगा कि जो सर्कमस्टांस है ना उसके हिसाब से कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जस्टिस को एक रिलेटिव कंसेप्ट बोला गया है। एंड और एक और चीज बोली कि जो राइट टू फ्रीडम है ना, राइट टू फ्रीडम इज अ प्री रिक्विसाइट ऑफ अ गुड गवर्नेंस, ऑफ अ गुड गवर्नमेंट। तो राइट टू फ्रीडम में क्या आता है, मतलब फ्रीडम टू क्रिटिसाइज भी आता है। तो इमैनुअल कांत ने बोला है कि यस, citizens have a freedom to criticize the government as well. Now we come to Fichet. Fichet contends that freedom is necessarily a relative term. इमैनुअल कांत ने क्या बोला कि justice is a relative term. Fichet ने क्या बोला, law is a freedom is a relative term depending on mutual relations, mutual personal relations which regulate human conduct. अब mutual personal relations which regulate human conduct क्या होता है, ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। It is the moral duty of every person to respect the liberty of others, but a legal duty to do is dependent on reciprocity. अब moral duty क्या है हर इंसान की, to respect the liberty of others. हर इंसान की एक moral duty है कि वो दूसरों की लिबर्टी को मतलब रिस्पेक्ट करे, पर जो लीगल ड्यूटी, मतलब जो लीगल ड्यूटी है ना वो जब भी तुम पे फॉल करेगी जब तुम मोरल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो। Fichet emphasized that law must be directed to ensure justice and not otherwise. As to the relation between individual and the state, Fichet pointed out that it is regulated by three basic principles. कौन कौन सी चीजें? पहला प्रिंसिपल, an individual becomes a member of a state through fulfillment of civic duties. स्टेट का मेंबर जब भी होगा एक सिटीजन, या फिर सॉरी स्टेट का मेंबर जब भी होगा एक इंडिविजुअल जब वो अपनी सिविक ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है। तो कब बनेगा मेंबर ऑफ अ स्टेट? कब बनेगा मेंबर ऑफ द स्टेट? जब वो अपनी सिविक ड्यूटीज को फुलफिल कर रहा है, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? लॉ लिमिट्स एंड एश्योर्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, यस। उसमें राइट्स प्रोवाइड करा गया है सिटीजन को, यस। तो लॉ क्या है? लिमिट करता है और गारंटी करता है राइट्स किसके? इंडिविजुअल के। आउटसाइड इज फियर ऑफ सिविक ड्यूटीज। अब 10 मतलब 4 हैं, 1 1 2 3 4, ये ये सिविक ड्यूटी है, ये सिविक ड्यूटी है, बस। बाकी के जो 2 एक्ट्स हैं तुम्हारे वो क्या है? वो उसके लिए इंडिविजुअल फ्री है एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू हिमसेल्फ ओनली, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, ही जस्टिफाइड स्टेट्स राइट टू पनिश एज अ रिटेलिएटरी मेजर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो सिविक ड्यूटीज फुलफिल नहीं करेगा, नहीं करता कोई, मैं नहीं करती फुलफिलमेंट ऑफ सिविक ड्यूटीज, तो मेरे पे क्या लगेगा? पनिशमेंट लगेगा एज अ रिटेलिएटरी मेजर, ठीक है। हेगल, अब हमारा लास्ट जूरिस्ट, हमारे लास्ट जूरिस्ट हैं हेगल। हेगल जी बोलते हैं कि ऑल लॉज मस्ट कंफर्म to dynamic changes in society for the purposeful attainment of human perfection. With the change of society, with the change of circumstances, law must be मतलब law must be changed or inhabited to the dynamic changes in society. तो
for the purposeful attainment of human perfection. That's what it wants to convey. Hegel ji. Hegel emphasized three kinds of functions of the state, namely universal, particular, and individual aspect. Universal here means formulation of laws. Formulation of laws. Particular means law applicable to special cases. Individual aspect means monarch. अब हेगल ने 3 फंक्शंस स्पेसिफाई करे हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज स्टेट के 3 फंक्शंस हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज और स्पेशल केसेस पे लॉ अलग एप्लीकेबल होगा और इंडिविजुअल एस्पेक्ट देखो अभी भी होता है ऐसा कि स्पेशल केसेस के लिए अलग लॉज होते हैं जैसे कि लॉ एप्लीकेबल टू स्पेशल केसेस जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दया भागा एंड मिताक्षरा स्कूल वेस्ट बंगाल पे कौन सा लॉ लगता है दया भागा या मिताक्षरा कमेंट डाउन बिलो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है ठीक है कि दया भागा लगता है कि मिताक्षरा लगता है दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम माय साइड नेक्स्ट थिंग इज हाँ तो ये लॉ एप्लीकेबल टू स्पेशल केसेस प्रॉपर्टी के केसेस में मैंने एग्जांपल बताया कि प्रॉपर्टी के केसेस में क्या होता है कि रेस्ट ऑफ इंडिया और वर्सेस वेस्ट बंगाल है ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ स्पेशल लॉज हैं और उसमें थे जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द इंडिविजुअल एस्पेक्ट मोनार्क अब बेसिकली वो मोनार्की को प्रमोट कर रहा है तो साफ सी बात है कि thus Hegel is opposed to democratic state and universal franchise evolution. He contended that various manifestations of social life include and are the product of an evolutionary process. This process operates itself in form of thesis, antithesis and synthesis. Thesis का मतलब है आपका यहाँ पे idea. Antithesis का मतलब है objection या फिर criticism. सिंथेसिस क्या है रिकंसाइल कर रहा है रिकंसिलिएशन ठीक है तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है जो कि बार बार रिपीट होता रहता है एक पॉपुलर आइडिया रहता है सोसाइटी में अब उस पॉपुलर आइडिया को कोई मतलब कम्युनिटी उसे वो करती है क्रिटिसाइज करती है या फिर ऑब्जेक्शंस डालती है अपने तो उससे क्या होता है एक सिंथेसिस बनाया जाता है एक लॉ बनाया जाता है कि इन दोनों में रिकंसिलिएशन हो जाए जैसे कि बहुत गलत हो रहा था SC ST OBCs विमेन्स चिल्ड्रन इन सब के साथ ओल्ड एज डिसेबल्ड पर्सन्स तो इनके लिए एक स्पेसिफिक लॉज बने तो लॉ बन गया तो डिसेबिलिटी एक्ट बना विमेन के लिए women protection of women from harassment at workplace बना पॉक्सो बना चिल्ड्रन के लिए तो ये क्या हो गया एक रिकंसिलिएशन बना दिया रिकंसाइल कर दिया तो दैट इज thesis antithesis and synthesis and this process repeats time and again as a historical phenomenon so that's it for today I hope you like my video and if you like my video so please support me and you can support me by liking this video sharing this video and by commenting your feedback what could be done better for the future videos what can I do better and if I'm doing good then also comment down below thank you that's it for today have a nice day